बडीज। तो आज हम सीखने वाले हैं एंगल्स और उनके टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। What is an angle? When two rays, now what is a ray over here? When a line is drawn from a point and it has no end, it is known as ray. So when two rays join each other, an angle is formed. So let us see if this is our first ray and our second ray. When they join each other, we get an angle. So now what points we have to remember for angles? Let us see. If this is my angle PQR, so the name of my angle would be angle PQR, or I can name it as RQP. You have to name it from the end only, and your vertex should be in between. So here, where vertex is nothing but the rays join at a point, at a particular point, that particular point is known as vertex. So for this angle, your vertex is Q. Next, arms of an angle. So here, arms of the angle are ray PQ and ray QR. You can see this, PQ and QR are the arms of the angle. So अब देखते हैं इंटीरियर पॉइंट्स और एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं। अगर एंगल के अंदर कोई पॉइंट दिया गया हो तो उसे हम बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, इस एंगल में ए एंड पॉइंट बी इज द इंटीरियर पॉइंट। अगर एंगल के बाहर कोई पॉइंट दिया गया हो, जैसे कि सी और ई, सो दीज पॉइंट्स आर नोन एज एक्सटीरियर पॉइंट्स। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड रिमेंबर फॉर एन एंगल। देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो पहला है जीरो एंगल। तो जैसे कि एंगल फॉर्म कैसे होता है, टू रेज से, राइट। तो दिस इज आवर फर्स्ट रे, और जो सेकेंड रे आएगी, जैसे कि हम ये प्रोट्रैक्टर पे देख सकते हैं, सेकेंड रे आएगी, दिस इज जीरो। सो सेकेंड रे विल लाई ऑन दिस रे ओनली। व्हेन टू रेज लाई ऑन ईच अदर, it is known as angle 0 degree angle. For example, angle with measure of 0 degree is called as zero angle. तो इसका डिग्री क्या रहेगा, 0. Whereas next is right angle. So right angle के लिए पहले हम एक रे निकाल देंगे, फिर right angle is formed by 90 degree. तो 90 हम प्रोट्रैक्टर पे देख सकते हैं, जो कि है इधर. So this is 90 degree. So when two arms are joined or two rays are joined and their measure is 90 degree, so angle with measure of 90 degree is called an right angle triangle. So उसका measure है 90 degree. तो next angle है acute angle. जब measure of an angle is less than 90 degree, it is known as an acute angle. For example, हमारा एक आँख, एक रे हम इधर रखते हैं, सो सेकेंड रे 90 डिग्री के पहले लाई होगी फॉर दिस, इफ दिस इज अ 90 डिग्री, और अगर उसके पहले रे लाई हो रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे, उससे हम अक्यूट एंगल बोलेंगे. सो द मेजर ऑफ अक्यूट एंगल इज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री. वेयर एज नेक्स्ट एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. व्हेन this is a 90 degree, when an angle is more than 90, that is this side, more than 90, it is known as an obtuse angle triangle. For example, हम अपने प्रोट्रैक्टर पे देख सकते हैं, this is a 90 degree. Angles more than 90 is 100, 110, 120, 130. So यहाँ पे कहाँ भी lie होगा तो उसे हम obtuse angle कहेंगे. For now our angle is lying between 150 degree. So this is our 150 degree angle. Whereas अगर हम ऊपर देखेंगे, ये angle less than 90 है, that is it is a 50 degree angle. So यहाँ पे अगर लाइन करेंगे तो हम उसे acute angle करके कहेंगे. So when an acute angle triangle is the one which lies between 0 to 90 degree, whereas an obtuse angle is one which lies between 90 degree to 180 डिग्री. नेक्स्ट एंगल इज स्ट्रेट एंगल. अब स्ट्रेट एंगल क्या है, जो एंगल 180 डिग्री मेजर रहता है उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस,
ये एंगल शुरू होता है यहाँ से, सो 0, 1, 2, 90 क्रॉस करके 170 क्रॉस करके 180. So this angle from here it starts and ends over here at 180 is known as 180 degree angle. So इसका degree is straight line angle. So this is nothing but 180 degree. Next is reflex angle. Reflex angle is an angle जो lie करता है 180 to 360 degree के बीच में. Let's see. Now this is my 180 degree angles lie over here, right? तो 180 से ज़्यादा, this is my reflex angle. So इसका डिग्री रहेगा 180 डिग्री to 360, between 180 and 360. Now next is full और complete angle. Full और complete angle आपको ये 0 डिग्री जैसा ही लग रहा रहेगा, पर ये 0 डिग्री नहीं है. ये चालू होता है यहाँ से और एंड होते होते ये पूरा सर्कल लेता है. दिस इज 180 एंड वन मोर 180 डिग्री इधर ये एंड होता है, दैट इज 360 डिग्री एंगल. सो दिस एंगल विद अ मेजर ऑफ 360, जहाँ डिग्री होगा 360 डिग्री, इज नोन एज एन फुल और कंप्लीट एंगल. अब देखते हैं एडजेसेंट एंगल. सो व्हाट इज एन एडजेसेंट एंगल? व्हेन एंड टू एंगल्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स, a common arm and separate interior, उन्हें हम adjacent angle कहेंगे. तो एक फिगर के एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि कैसे. एंगल ABC मुझे दिखाई दे रहा है और वो डिवाइड हो रहा है रे BP से. सो मुझे दो एंगल्स मिल रहे हैं यहाँ पर, जो कि है एंगल ABP और एंगल PBC, राइट? सो अगर मैं ये दोनों एंगल को कंपेयर करूंगी तो मुझे एक कॉमन वर्टेक्स दिखाई दे रहा है जो कि है B. सो अपना फर्स्ट क्राइटेरिया राइट हो गया, जो कि है कॉमन वर्टेक्स. नेक्स्ट कॉमन आर्म देखेंगे, BP हमें ऑल्सो कॉमन आर्म मिल गया है, दैट इज BP. अब इंटीरियर्स अगर देखें तो इसका इंटीरियर ये साइड है और इसका इंटीरियर ये, तो हमें सेपरेट इंटीरियर्स भी मिल गए हैं. सो दिस क्राइटेरिया इज ऑल्सो फिल. सो यस वी कैन से एंगल ABP एंड एंगल PBC इज एन एडजेसेंट एंगल. Similarly, we will take one more figure जो कि है BNA, BNC. अगर हमने ये दो एंगल अभी ले लिए तो BNA and BNC. So in this I can see common vertex that is N and a common arm BN. तो दो क्राइटेरिया फुल हो गए, प्लस इसके सेपरेट इंटीरियर्स भी हम देख सकते हैं. सो यस वी कैन से angle BNA and angle BNC is an adjacent angle. Similarly, if we will take this angle and this angle, तो इसमें हमें कॉमन वर्टेक्स को ही दिखाई दे रहा है N. फिर हमें कॉमन आर्म कौन सा दिखाई दे रहा है ये एंगल में, वी कैन सी द कॉमन आर्म इज NC. So yes, and we have a separate interior. So yes, we can say angle BNC and angle ANC is an interior, is an adjacent angle. Similarly, ये साइड अगर मैंने देखी, ये दो एंगल्स को मैंने कंपेयर किया, तो फिर से मुझे कॉमन वर्टेक्स क्या दिखाई दे रहा है N, और ANB और ANC में कॉमन आर्म कौन सा है AN. So and they are also having separate interior. So yes, I can say angle BNA is adjacent to angle ANC. So you can find out how many adjacent angles are there by only looking at three main things, that is common vertex, common arm and separate interior. So now let's see the last part of the video, that is complementary angle and supplementary angle. So what is a complementary angle? If sum of two angles is 90 degree, अगर कोई भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल इधर एंगल PQR मुझे दिखाई दे रहा है. ओके, सो एंगल PQR, अगर मैं PQR के साथ ABC को लूंगी तो वो 50 डिग्री है. सो इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि वो दोनों का सम मिला के 50 + 30 हमें 80 मिल रहा है. तो वी कैन नॉट से दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर. पर अगर मैंने BQR को देखा तो मुझे क्या है 60 डिग्री, तो 60 + 30 हमें क्या होने वाला है 90 डिग्री. सो PQB 30 and PQR 60. So 60 + 30 is 90 degree. So yes, we can say that angle PQR and angle BQR are complementary pairs.
ऐसे ही हमें 45 वाले भी मिल सकते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स, इट डिपेंड, बट वो दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तभी हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे. नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल. इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, those angles are known as supplementary angles. Usually supplementary angles are linear pair. For example, अगर मेरा एक एंगल 140 हो तो मेरा दूसरा एंगल 40 होगा. क्यों? क्योंकि 140 प्लस 40 इज 180 डिग्री. अगर मेरा वन एंगल 120 है, सो माई सेकेंड एंगल इज सपोज टू बी 60, देन ओनली दोज टू एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे. ओके. I hope you are clear with the concept. Still, I have made some notes of what we have learned in this video. Still, you are having any doubts, you can mention it in the comment box.